Good morning, students. From today, we are going to start our online classes. Now, I am going to start your that supplementary reader resolution book. The first chapter of this book is The Thief's Story. As the name itself suggests, this is the story of a thief. So, only two characters are there in this story. The two main characters are Anil and Hari Singh. This story is written by Ruskin Bond. I was still a thief when I met Anil, and though I was only 15 years old, he was only 15 years old. I is the narrator and I refers to Hari Singh. He was still a thief. जब तक अनिल से मिला था तब तक वो क्या था, थीफ था. उसके बाद में उसमें अनिल से मिलने के बाद में एक चेंजेस आता है. वो उस थीफ जो है उस चीज को छोड़ना चाहता है. वो चेंजेस हम इस स्टोरी में देखेंगे कैसे आए, वो विश्वास उसने अनिल के साथ में कैसे बनाया और फिर वो चेंज कैसे हुआ. वी आर गोइंग टू सी इन दिस चैप्टर. I was an experienced and fairly successful hand. Fairly successful hand को आपको अंडरलाइन करना है. It means master of any particular action. So किसी काम में माहिर होना और वो चोरी करने में being 15 years old चोरी करने में बहुत ही ज्यादा माहिर था, टैलेंटेड था उस चीज में. Anil was watching a wrestling match when I approached him. Anil क्या कर रहा था? He was watching TV और TV में wrestling match देख रहा था. He was about, now the author gives a description about Anil. कितने साल का था? He was about 25, a tall, lean fellow, and he looked easy going. ऐसा लग रहा था easy going, किसी के साथ normally mix up हो जाए वैसा person था. Kind and simple enough for my purpose. Yes, बहुत अच्छा kind hearted person था, simple enough. मतलब उसको उससे क्या करना था, हरि सिंह को अनिल से पैसे चुराने थे, चोरी करनी थी. तो उसको ऐसे लग रहा था कि इस बार काम बन जाएगा, इसके साथ मैं रहूंगा, इसके साथ फ्रेंडशिप कर लूंगा तो मैं इससे पैसे चुरा सकता हूँ. I was sure I would be able to win the young man's confidence. मुझ में ऐसे था, I was sure था, certain था, मैं इससे इसका विश्वास जीत लूंगा और चोरी भी धीरे धीरे फिर चोरी भी कर लूंगा. You look a bit of wrestler yourself, I said. Who is saying? Hari Singh is saying. मुझे ऐसा लग रहा तुम खुद एक wrestler हो. A little flattery helps in making friends. Flattery means you have to underline this word. Excessive praise. किसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा तारीफ करना. उसने तारीफ की, उसको उससे पटाना था ना उसको, तो उससे तारीफ की थी. A little flattery help in making friends. उसको friendship करनी थी उससे, इसलिए उसको तारीफ की थी. So do you? He replied, which put me off for a moment because at that time I was rather thin. तो अनिल ने कहा ऐसा लग रहा तुम भी क्या हो, एक रेसलर हो, पर वो ऐसा नहीं था, वो तो बहुत ही ज्यादा थिन था, 15 years old, छोटा सा बच्चा ही था वैसे तो. Well, I said modestly, I do wrestle a bit. उसने कहा हाँ मैं कभी कभार कर लेता हूँ रेसलिंग करके. What is your name? हरि सिंह. आई लाई. उसने झूठ बोला है. उसने पूछा था क्या नाम है, उसने बोला हरि सिंह. उसको हर बार जहां पे भी जिन लोगों के संपर्क में आता है उसको नेम चेंज करना पड़ता है. वो झूठ बोलता है, नेम चेंज करता है. क्यों करता है? ताकि उन लोगों से वो बच सके और पुलिस से भी बच सके. I took a new name every month that kept me ahead of the police and my former employers. जिनके पास पहले काम करता था उन लोगों से भी बच सकता था और पुलिस से भी बच सकता था. After this introduction, Anil talked about the well-oiled wrestlers who were grunting, making sounds, lifting and throwing each other about. I did not have much to say. Anil walked away. I followed casually. Yes. अब वो उसके पीछे पीछे साथ में गया है. Hello again, he said. I gave him my most appealing smile. I want to work for you, I said. But अनिल ने क्या कहा? But I can't pay you. मैं तुम्हें सैलरी नहीं दे सकता, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता पैसे. अब इसने कह दिया मैं तुम्हारे एज अ सर्वेंट काम करना चाहता हूँ. हरि सिंह ने कह दिया अनिल को. I thought that over for a minute. Perhaps I had misjudged my man. I asked, "Can you feel me?" Yes, उसको एक बार ऐसे लग रहा था जब उसने कह दिया मैं तुम्हें
पे नहीं कर सकता, सैलरी नहीं दे सकता, तो उसको ऐसा लगा कि कहीं मैंने इसको जज करने में गलती कर दी, इसके पास शायद पैसे नहीं है, तभी इसने मुझे ऐसे कहा कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता हूँ, सैलरी नहीं दे सकता हूँ। फिर इसने ऐसे कहा कोई बात नहीं, देखते हैं, कैन यू फीड मी, तुम मुझे खाना खिला सकते हो क्या? कैन यू कुक? आई कैन कुक, आई लाइड अगेन, उसने वापस झूठ बोल दिया, उसको कुकिंग वगैरह कुछ नहीं आता था, फिर भी उसने उससे उसके पास रहना था तो उसने झूठ बोल दिया। यस, उसने कहा मैं खाना बना सकता हूँ, वापस दोबारा झूठ बोला। इफ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, तो उसने कहा, अनिल ने कहा चलो कोई बात नहीं, तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला भी सकता हूँ, मेरे पास रख सकता हूँ और तुम खाना खा सकते हो, मेरे पास रह सकते हो, पर मुझे आपको पे करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, सैलरी पे करने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। He took me to his room over the street shop and told me I could sleep on the balcony. But the meal I cooked that night must have been terrible because Anil gave it to a stray dog and told me to be off. Yes, उसको कुकिंग आती नहीं थी, उस दिन उसने खाना बनाया, इतना खराब खाना था, तो अनिल ने वो खाना जाके किसको दे दिया? Stray dog, to the dog that lives in the street. बट आई जस्ट हंग अराउंड, मैं उसके चिपका हुआ ही रहा था, उसको बार बार पूछ रहा था, उससे टच में आने की कोशिश कर रहा था, स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे एंड ही कुड नॉट हेल्प लाफिंग, उसको देख के स्माइल करना, फिर वो भी थोड़ी देर बाद में मुझे देख के स्माइल करता था, पास करता था वापस। Later he patted me on the head and said, "Never mind, कोई बात नहीं." He would teach me to cook. Yes, उसने कहा मैं तुम्हें खाना बनाना सिखाऊंगा. He also taught me to write my name and said, he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers. उसने अनिल ने कहा कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं बनाना आ रहा, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, तुम्हें पढ़ना लिखना भी सिखाऊंगा, whole sentences बनाना भी सिखाऊंगा और धीरे धीरे नंबर्स ऐड करना भी सिखा दूंगा. I was grateful. I refers to the narrator हरि सिंह, उसको बहुत अच्छा लगता, थैंकफुल फील कर रहा था, कोई तो एक ऐसा व्यक्ति मेरे लाइफ में मिला जो मुझे सिखाने के लिए रेडी है. He was very impressed. यही इंप्रेशन इसको लास्ट में इसका माइंड चेंज करने में काम आता है. He knew that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve. अगर मैं एक बार पढ़ा लिखा इंसान बन जाऊंगा तो मैं भी बहुत सारे लाइफ में बहुत सारे काम कर सकता हूँ, बहुत सारे बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ. It was quite pleasant working for Anil. अनिल के लिए काम करना उसको अच्छा लग रहा था. I made the tea in the morning, then would take my time buying the day's supply. फिर मैं बाजार जाता था, जो रोज की दिनचर्या में जो चीजें चाहिए थी, वेजिटेबल फ्रूट्स, वो लेके आता था. Usually making a profit of about ₹1 a day. जो ये चीजें लेके आता था, थिंग्स जो बाजार से लेके आता था, उनमें वो क्या करता था, पर डे ₹1 अपने पास रख लेता था. 20 रुपीज की लेके आता तो 19 रुपीज की थिंग्स लेके आके ₹1 अपने पास रख लेता था. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. अनिल को पता था वो रोजाना ऐसे कुछ कर रहा है, पर अनिल ने उसको अवॉइड किया, कोई बात नहीं करके छोड़ दिया था. अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, मतलब वो रेगुलर नहीं था, उसके जो कमाई का साधन था, कभी इरेगुलर इंटरवल्स. फिट्स एंड स्टार्ट्स यू हैव टू अंडरलाइन और उसने लिखना है इरेगुलर इंटरवल्स, मतलब उसके पास कभी पैसे आते थे और कभी पैसे नहीं भी आते थे. He used to write for magazines, तो उसके पास कभी पैसे होते थे और कभी पैसे नहीं होते थे. He would borrow 1 week, lend the next. Yes, एक 1 week तो borrow करता था और अगले से तो उसके पास पैसे आ जाते तो वो दोबारा उनको दे देता. He kept worrying about his next check, but as soon as it arrived, he would go out and celebrate. Yes, जब भी उसको चेक मिलता था तो अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर जाके सेलिब्रेट भी करता था. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. To make a living means उसको कमाई का जो साधन था एकदम अलग था. मैगजीन्स के लिए लिखता था, कभी उसकी मैगजीन्स की जो लिखता था वो अप्रूव हो जाती तो उसको पैसे मिलते थे और कभी अप्रूव नहीं होती थी तो उसको पैसे नहीं मिलते थे.
One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. उसने एक बुक बेची है पब्लिशर को और उसको उस बुक के लिए उसको पैसे मिले थे. At night I saw him tuck the money under the mattress. Tuck the money means mattress के नीचे रखते हुए उसने देख लिया था हरि सिंह ने कि अनिल आज बहुत सारे पैसे घर पे लाया है और वो मैट्रेस के नीचे रख रहा, उसने देख लिया था. I had been working for Anil for almost a month. एक महीना हो चुका था. And apart from cheating on the shopping, I had not done anything in my line of work. मतलब बड़ी चोरी नहीं की थी, छोटी छोटी चोरी, 1 rupee, 2 rupees, 1 rupee, 2 rupees ऐसी चोरी की थी. पर उसने बहुत सारे अमाउंट एक साथ देखा ना तो उसका अंदर का चोर वापस ऐसे एक्साइटेड हो गया था. I had every opportunity for doing so. Anil had given me a key to the door and I could come and go as I pleased. Yes, दोनों के पास डबल कीज थी. अनिल के पास भी थी और हरि सिंह के पास भी थी. कभी भी अनिल भी आ जा सकता था और हरि सिंह भी आ जा सकता था. दो कीज तो थी. He was the most trusting person I had ever met. Underline this line. This is a very important line of this chapter. उसके लाइफ में हरि सिंह के लाइफ में ऐसा कभी भी पर्सन उसने कभी पहले किसी से ऐसे पर्सन से मुलाकात नहीं हुई. ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन. 15 years की लाइफ. ही वॉज only 15 years old ना हरि सिंह. तो ऐसा कोई पर्सन इससे कभी ऐसे पर्सन से वो मिला ही नहीं था. And that is why it was difficult to rob him. It is easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it is difficult to rob a careless man. Careless था वो ऐसे परवाह भी नहीं करता था, कोई बात नहीं, 1-2 रुपए चुरा रहा तो कोई बात नहीं, फर्क नहीं पड़ा करके. Sometimes he does not even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. और उसको ये 1 रुपए 2 रुपए चुराने में मजा भी नहीं आ रहा था, उसको अच्छा नहीं लग रहा था. उसको जैसे भी स्टार्टिंग से उसका यही था ना, तो वो एक अंदर से जैसे पैसे देके इंटेंशंस उसके जागरूक हो गए कि वो पैसे में जल्द से जल्द चुरा लूं. Well, it's time. I did some real work. I told myself, I am out of practice. Yes, मेरा जो काम था मैं धीरे धीरे भूलने लग गया हूँ. And if I don't take the money, he will only waste it on his friends. वो सेलिब्रेट करेगा, उसके पास पैसे आ गए तो वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाके सेलिब्रेट करेगा. After all, he does not even pay me. अब मुझे वो पैसे चुराने हैं, वो मुझे ना तो सैलरी देता, 1 month हो गया उसके पास रहते रहते. अगर मैं ये पैसे चुराऊंगा नहीं तो ये पैसे अपने फ्रेंड्स पे जाके पार्टी करके खर्च भी कर लेगा. Anil was asleep. A beam of moonlight stepped over the balcony and fell on the bed. I sat up on the floor, considering the situation. If I took the money, I could catch the 10:30 express to Lucknow. Slipping out of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Unlined means कोई भी marks नहीं थे उसके face पे. Even I had more marks on my face, though mine were mostly scars. Yes, उसके तो वो चोरी करता था, हो सकता कभी उसके लगी भी हो तो फेस पे बहुत ज्यादा scars थे, घाव थे वैसे. My hand slid under the mattress searching for the notes. When I found them, I drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I was startled and quickly crawled out of the room. एक बार तो डर गया. Startled means surprised. अनिल ने करवट बदली और उसकी तरफ बदली थी जिस तरफ से हरि सिंह ने हाथ डाला था, उसी तरफ उसने करवट बदली. तो एकदम सरप्राइज हो गया और डर भी गया. उसने पैसे चुराए और भाग के चला गया. Crawled out of the room. When I was on the road, I began to run. दौड़ने लगा मैं ताकि वो ट्रेन पकड़ सके. उसको पता था 10:30 को लखनऊ एक्सप्रेस है. I had the notes at my waist, held there by the string of my pajamas. I slowed down to a walk and counted the notes. 600 rupees थे in 50 के notes थे. 600 rupees थे total उसके पास. I could live like an oil-rich Arab for a week or 2. Imagination भी start हो गई. In 600 rupees से मैं ऐसे रह सकता हूँ जैसे कोई एक rich man हो of Arab countries. When I reached the station, I did not stop at the ticket office.
I had never bought a ticket in my life. Yes, टिकट्स लिया ही नहीं और उसने लाइफ में कभी भी नहीं लिया, वो ऐसे ही चढ़ गया. But dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of the carriages. जैसे ही वो चढ़ने वाला था, मूव होने लग गई थी ट्रेन, बट आई हेसिटेटेड. मुझे किसी चीज ने रोक लिया. For some reason I can't explain क्यों हुआ ऐसे साथ. Even I was stuck. ये क्या हुआ मेरे साथ में, मुझे चढ़ना था और मैं चढ़ क्यों नहीं पाया. And I lost the chance to get away. और ट्रेन जब स्पीड ही थी, धीरे धीरे चल रही थी, तब उसको चढ़ना था पर वो चढ़ नहीं पाया. उसके अंदर से एक इनर वॉइस जो थी वो रोक रही था, उसका कॉन्शियस ने उसको रोक लिया और फिर वो ट्रेन चली गई. When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. Platform एकदम empty था, कोई नहीं था, मैं सिर्फ अकेला था वहाँ पे. I had no idea where to spend the night. I had no friends, believing that friends were more trouble than hell. उसको ऐसे एक belief थी, friends एक तरह से क्या है, they will create problems, they will create troubles for him. Help करने की बजाय. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station. मुझे होटल में भी नहीं रुकना था, फिर कुछ लोग सोचेंगे ये कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया, सब कुछ डिटेल्स पूछते हैं. The only person I knew really well was the man I had robbed. मैं उस शहर में अनजान था तो मुझे पता भी नहीं था, एक स्ट्रेंजर था, तो और किसी से उसको जान पहचान भी नहीं थी. मुझे सिर्फ एक व्यक्ति मैं जानता था, वो जो व्यक्ति कौन था, अनिल. Leaving the station, I walked slowly through the bazaar. In my short career as a thief, I made a study of men's faces when they had lost their goods. थोड़ा तो एक्सपीरियंस गेन किया एज अ thief, तो उसको अच्छे से जानता था, लोगों के चेहरे पढ़ता था वो. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. Yes, कुछ नहीं कर सकते. greedy man को तो डर लगता था मेरे पैसे कोई चुरा के नहीं ले जाए. The rich man, उनको गुस्सा आता था ऐसे कैसे हो गया हमारे साथ में. पुअर मैन थोड़ा बहुत होगा तो वही उसको एक्सेप्ट ही करना था, मेरे पास इतना ही था और वो भी चला गया. But I knew that Anil's face when he discovered the theft would show only a touch of sadness. अब वो रियलाइज करने लग गया, अनिल को थोड़ा सा दुख होगा, उसको ये चीज नहीं होगा कि मेरे पैसे चले गए, उसने जो विश्वास मेरे ऊपर बनाया था उस चीज के बारे में उसको जो थोड़ा सा उसने उसका ट्रस्ट तोड़ा, भरोसा तोड़ा है. Not for the loss of money, but for the loss of trust. Again, the important line of your chapter, you have to underline this line. Not for the loss of money. अनिल को जो पैसे गए उस चीज के लिए दुख नहीं होगा, उसको इस बात के लिए दुख होगा, मैंने जो विश्वास बनाया था एक अजनबी पे, उस अजनबी ने वो विश्वास तोड़ दिया. I found myself in the मैदान and sat down on a bench. The night was chilly. It was early November and a light drizzle add to my discomfort. Yes, drizzling हो रही थी, little raindrops हो रहे थे. Soon it was raining quite heavily. My shirt and pajamas stuck to my skin and a cold wind blew the rain across my face. Now he was feeling lonely और वहाँ वो बैठा था, फिर बारिश भी होने लग गई, उसके कपड़े गीले हो गए और नवंबर का महीना था तो थोड़ी हल्की हल्की सी ठंड भी थी. I went back to the bazaar and sat down in the shelter of the clock tower. The clock showed midnight. It was 12 o'clock. I felt for the notes. They were damp from the rain. बारिश की वजह से वो जो notes थे, उसके जो पैसे थे वो गीले हो गए थे. Anil's money in the morning, he would probably had given me 2 or 3 rupees to go to the cinema. But now I had it all. I could not cook his meal, run to the bazaar or learn to write whole sentences anymore. अब अनिल को फील हो रहा धीरे धीरे, क्या पता सुबह होती तो वो मुझे 2 या 3 रुपए देता सिनेमा देखने के लिए, या फिर मुझे अब मैं ये नहीं कर सकता. I could not cook his meals or run to the bazaar, और ना मैं पढ़ना लिखना भी सीख सकता हूँ. I had forgotten about them in the excitement of the theft. जो जैसे पैसे देखे ना उसके मन में लालच हो गया था, तो उसने जैसे लालच में उस फट से चोरी कर ली, जल्द से चोरी कर ली. अब उसको फील हो रहा जो मैंने किया है उस पर्सन के साथ में वो गलत है.
Whole sentences I knew could one day bring me more than few hundred rupees. अगर मैं भी पढ़ना लिखना पूरे सेंटेंस बनाना सीख जाऊंगा तो हो सकता है मैं इन 100 रुपीज 600 रुपीज से ज्यादा पैसे भी लाइफ में कमा लूं. It was simple matter to steal and sometimes just as simple to be caught. Yes, चोरी करने वाले तो कभी ना कभी पकड़े भी जाते हैं. But to be really big man, a clever and respected man was something else. Now he has realized the importance of that. एक बड़ा आदमी बनना, clever और एक सोसाइटी में respected person बनना वो बहुत ही important चीज होती है. उसमें बनाने वो इमेज बनाने के लिए हमें बहुत टाइम लगता है. I should go back to Anil. I told myself if only to learn to read and write. अगर मुझे पढ़ना और लिखना सीखना है तो मुझे अनिल के पास जाना चाहिए. अब उसके अंदर से वो कॉन्शियस उसने अब ऐसे फील होने लगा मुझे अनिल के साथ धोखा किया, वो मैंने जो किया वो सही नहीं है, मुझे अनिल के पास वापस जाना चाहिए. I hurried back to the room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected. चोरी करना तो आसान है पर वो वापस उसी चीज को वहीं पे रखना और पकड़े नहीं जाना चाहिए, ये भी तो है. I opened the door quietly, then stood in the doorway in the clouded moonlight. Anil was still asleep. I crept to the head of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. उसकी सांसें फील हो रही थी, उसको वो सो रहा था. I remained still for a minute. Then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes. उसने जो वो रुपए चुराए थे उसके मैट्रेस के नीचे से, गद्दे के नीचे से उन रुपए को उसने वापस उसी जगह पे रख दिए. I awoke late next morning to find that Anil had already made the tea. He stretched out his hands towards me. There was a 50-rupee note between his fingers. My heart sank. I thought I had been discovered. तो स्ट्रक हो गया, लेट उठा था और अनिल ने उसके लिए टी बना ली. फिर उसने 50 रुपीज का नोट उसको दिया था. इसने सोचा तो मेरी चोरी पकड़ी गई है. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. अब इसको कहा गया है अब मैं तुझे हर मंथ सैलरी दूंगा. कल से मैंने कुछ मैगजीन्स के लिए लिखने के लिए स्टार्ट किया तो मुझे कुछ पैसे मिले भी है, अब मैं तुम्हें हर महीने सैलरी भी दूंगा. My spirits rose. When I took the note, I saw it was still wet from the night's rain. पैसे क्या थे, बारिश हुई थी ना तो पैसे क्या हो गए थे, गीले हो गए थे. तो अब उसको देख के शॉक भी हो गया और उसको ऐसे फील होने लगा कि अब मैं भी कुछ कर सकता हूँ करके. टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस. उसने कहा, अनिल ने कहा आज से मैं तुम्हें पूरे सेंटेंसेस बनाना, पूरे सेंटेंसेस लिखना सिखाऊंगा. He knew, but neither his lips nor his eyes showed anything. मुझे ऐसे लग रहा था, अनिल को पता था मैंने ऐसे उससे पैसे चुराए थे फिर वापस रखे, ये सब चीज मुझे ऐसे लग रहा उसको पता था, पर उसकी आंखें और ना उसने अपने मुंह से कुछ कहा मैंने ऐसे कुछ काम किया है क्या करके. I smiled at Anil in my most appealing way, वैसे attracting smile, and the smile came by itself without any effort. कोई दबाव नहीं था, वो स्माइल जो आई थी ऑटोमेटिकली आई थी. So written by Ruskin Bond. This is very nice story and it has changed the thief into a normal person. उसने उसके बाद में शायद चोरी करना छोड़ दिया, उसने मेहनत की, हो सकता है उसने लाइफ में आगे सक्सेस पाई होगी. So try to motivate others not to do